are the brothers. We run a workshop, substitute of shop. इनका नाम है मोहम्मद आसिफ और मेरा नाम है नौरोज अहमद। ये हम जो है यहाँ पर 2010 से काम कर रहे हैं और ये हमारी टेलर शॉप है और यहाँ पर हर तरह की सर्विस मिल जाती है। ये जगह है जो हमारी ये बल्ली मरान कहलाती है। ये हमारा एंसेस्ट्रल काम है। जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे जो सबसे ज्यादा जो फेमस रहे वो नाना जी रहे। नाना जी ने हमारे बॉम्बे में काम करा है, कलकत्ता में काम करा है। ये हमारा खानदानी काम है। हमारे फादर, ग्रैंडफादर और उनके फादर इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने से पहले के काम करते हुए आ रहे हैं। बड़े अंग्रेजों ने कंपनी कायम की थी जिसका नाम है लीला राम और जिसके जो एक्टिविटी मैनेजर थे वो हमारे ग्रैंडफादर थे। पार्टीशन की वजह से कंपनी खत्म हो गई, इसकी वजह से हमारा काम भी खत्म हो गया और फिर आखिर में जो है हालात ऐसे बन गए कि हमको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा और यहीं पे हमको अपना काम स्टार्ट करना पड़ा। में आई स्टार्टेड एज ए इंटर्न। मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया, ट्राई किया। आई वेंट हियर एंड देयर फॉर द जॉब। I got one job as intern, but they don't pay me. That was experience. So I got good learning experience from them. मैंने decide किया it is not about salary, it is about more of work. So I did lot of interns और ये सब 2002 में I did my intern with Satyapal. तो वहाँ पर जो main चीज मुझे समझ में आई कि आप कैसे अपने prints को design में convert करते हो और वो डिजाइन कैसे मार्केट में साड़ीज में, स्कार्फ्स में बहुत सारी जगह पे प्रिंट किए जाते हैं। जश्न कट्यूर के साथ मैंने काम किया और उनके साथ मैंने काम किया 7-8 months और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करना सीखा। मैंने ये सीखा खाका कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है, कारीगरों के साथ काम कैसे किया जाता है और उनसे एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स कैसे लिए जाते हैं। So that was the day जब मुझे समझ में आया कि the major thing in India is embroidery. That started with one कारीगर, one master. एक रूम लिया छोटा सा, एक टेबल मास्टर रखा वहां पर और मैंने बेसिक काम करना स्टार्ट किया। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली 2 कारीगर, 1 मास्टर के बाद 3 कारीगर हुए, फिर 4 हुए। हमने थोड़ा बड़ा रूम ले लिया, ऑर्डर्स आने लग गए। दैट इज हाउ द वर्क स्टार्ट्स, दैट इज हाउ हमको काम मिलने लग गया। इन 2009 हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया, स्टूडियो अटायर बाय शिखा। Panini is actually PA stands for Pankaj and Parth. Pankaj and Parth are my dad and my brother, and then NE is for Neetu, which is my mum. NI is for me. My nickname is actually Nini. Put it all together and it's become Panini. People don't want to spend a huge amount of money on putting art on their walls, but women will spend so much money on looking beautiful. And that's why we had a Rani for our logo. The original tagline was Rani Ji Padharo Sa. Rani Ji Padharo Sa. It was made by artists for art lovers, and that was the whole concept behind it. When you don't know your job, the artist will say, "आपको क्या पता इसमें इतनी problem है, and I've done it. I know what it takes. I know and I can say that this has to be done in this particular way. So nobody can make a fool out of me कि आपको नहीं पता." Now that we've gone beyond the scope of just painting, also gotten into embroidery, we keep on running it again and again and again until we're not happy with the way कि वो एक फूल उसी तरीके से उठना चाहिए, उसका मजा उसी तरीके से आएगा, We didn't know all of these things. We've learned it again on the job with our कारीगर. So we began in 2017, where we had no idea about what is it gonna be like. So the name Megan was just very spontaneously decided when we were traveling in a car. We thought that we need to create something unique. Megan means a pearl in the ocean, which needs to be discovered. The current collection which we just came up with is Phool Khak. It's a blend of colors. The meaning of Phool Khak is when a flower dies down, the colors which it emits. This is the kind of colors that we want to showcase in our collection. So the new collection is Phool Khak that we have just introduced in our store. देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बल्ली महाराज जो है हमारा पैदाइश यानी बर्थ एरिया है, जन्मभूमि है ये, तो इस वजह से हमें इससे बहुत अटैचमेंट है। हमारी फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो यहाँ पर है,
हमारा जो है कस्टमर सर्कल वो यहाँ पर है, और हम लोगों का जो एक्टिविटीज है और जो भी रिलेशनशिप है वो ज्यादा मोस्टली वो यही जो है पाया जाता है। तो इस वजह से हम सब इस इलाके से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए भी हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बंदे मारा नहीं है, बल्कि हमारे लिए जिंदगी का एक पोर्शन है। हमारा जो काम है वो रेगुलर काम नहीं है, ये सीजनल बेस्ड काम है। इसमें 2 प्रकार के सीजन होते हैं, एक ईद का सीजन होता है और एक दिवाली का सीजन होता है। इस वक्त जो है काम के हालात ऐसे हैं, काम का डाउनफॉल है, इस वक्त लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो एनसीआर का एरिया है, नोएडा है, गुड़गांव है, वहाँ पर जो है लेबर ज्यादा जाना पसंद करती है। तो उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पर फैसिलिटीज ज्यादा है, जिसकी वजह ये होगी कि वो काम भरपूर मिलता है। ये हमारे लिए एक तरह से मसला बन गया है, हमें वक्त पे लेबर नहीं मिल पाती, काम हमारा वक्त पे जो नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ी सी हमारे काम में दिक्कत इस वक्त आ रही है। ये ऊपर वाले की मर्जी है, इसको कोई क्या कर सकता है, हालात ऐसे। आजकल एक मसला और जो है पैदा हो गया है कि कुछ नेशनल प्रॉब्लम भी जो क्रिएट हो गई है, कुछ आपस की नस्ल का भेदभाव, वो सब अब यह तकरीबन सामने आ रहा है। तो जिसकी वजह से कुछ यानी पॉलिटिशियन एक्टिविटीज ऐसी हुई है जिन्होंने ये एक फर्क पैदा कर रखा है। ये भाई जगह है, हालांकि क्लाइंट के पास है, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट कस्टमर है ना वो अंदर नहीं आ पाता। सबसे बड़ी हमारे पास जो ड्रॉबैक है वो ये है। तो वहाँ पर जो अपना जो कस्टमर का लोकल कस्टमर ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करता है, और जिसकी वजह से हम लोग जो है, जैसे हम लोग तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल में हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहिए था। सिर्फ रेजिडेंशियल लोकल कस्टमर होने की वजह से हम लोग बहुत पीछे हो गए, और जिसकी वजह से एक मतलब कोई ना कोई नया स्टेप लेने के लिए तैयारी की जा रही है। So in 2020, on the onset of COVID, that was, I would say, the most difficult times in our business that we experienced. We were the most hard-hit industry, I would say. I would not say that other people were not affected, but we feel that we were the most affected because the business depended upon the footfalls, and if people are not getting outside their houses, definitely there's no work for us. Couldn't even sell them online because there was no wedding happening. Everything got cancelled. If I talk about our rental, if you had to pay our staffs, our salaries, everything was just like that, just like before. So it was the hardest time I have experienced in my history of working. In the market, competition has been growing, and it will always grow, and it will always be a big challenge for us. But this is how we seem to overcome that challenge, by giving the best customer service. We were really scared putting someone on a payroll because we are obviously like very dependent on our karigars for work, but the karigar is very dependent on you, like their livelihood is dependent directly on you. It's a lot of responsibility. मेरा नाम विकास दास है, मैं उड़ीसा से आया हूँ और मैं उत्कल यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। फाइन आर्ट के डिग्री किया है मैंने। उसके बाद मैं दिल्ली में आया जॉब के लिए, और यहाँ काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिल रहा है, जैसे सिल्क कपड़े के ऊपर और बाकी सारा तरह तरह के डेनिम कपड़े के ऊपर सारा काम होता है। बहुत सारा मीडियम रेट का काम होता है, यहाँ को मतलब मज़ा आता है वाला काम। When we first put our factory, we both marched into this place and we went around hunting and finally we found a place. अच्छा इस पे हम rental ले लेते हैं, छोटा सा, I think 3,000 ना, we started 5,000 we started. That was the cheapest we could get. Second floor पे गंदी सी गली में, and one कारीगर we managed for ourselves. And वहाँ पर जिस तरह से लोग बोलते हैं ना, मैडम फैक्ट्री डाले हैं, उन्हें बोला ये फैक्ट्री है, मतलब फैक्ट्री दिख तो नहीं रही है, एक इंसान की फैक्ट्री कहाँ होती है। These are very finer things. There may be a few people who will walk in the store and say, हाँ तो ठीक है, तो हैंडमेड है तो क्या हो गया, ऐसा तो वहाँ पर भी कुछ और मिल सकता है। What we are trying to make is something very beautiful, and you need to have a taste to. Yeah, it's basically the difference between dining and fine dining. You know, it's like that. And that's over a period of time we've realized. थोड़ा सा शुरू में थोड़ा दिल को बड़ा चोट लगती है जब कोई आके बोलेगा हाँ अच्छा तो है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो आपने इसका कॉस्ट इतना रखा है। How do you explain? Everything matters, even the place matters. So even the artists who are working with us have experience over 18 years. He did not learn it. Yeah, 18 just years. Like that. Even if he's putting, a piece of jute and putting a resham dhaga over it, like that's come with like time, experience, and effort. Like their hands move like machines. Very professional. Yeah, they're not very your skilled usual. artists. They're very skilled artists, and for that we have respect for them. Because we can't make what we make without them. It's amazing what they do. So it's really lovely.
and all our artists are super talented. दिन में 15 घंटे काम करता हूँ। ये सिलमपुर में काम सीखा था मैंने। ये हमारी तरफ है सिलमपुर में धर्मपुरी रोड है, वहाँ पर काम सीखा था मैंने। तो वहाँ पर मैंने कम से कम 5-6 साल वहाँ काम सीखा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आया था। ये अपने लगा वाला काम है, कर रहे हैं यहाँ पर। पसंद है यहाँ काम पसंद है, ये भी तो सीखा था। जब हम लोग फैशन डिजाइनिंग करते हैं तो देयर इज अ कोर्स मॉड्यूल जिसमें हमें फैशन शोज करने ही करने हैं। सो 99 में हम लोगों ने फैशन शो किया जिसकी थीम थी रेप्सिडी एंड इट वाज अ बिग हिट। फैशन शोज में क्या होता है ना, एक ऐसा माहौल और एक ऐसा सीन देखने को मिलता है विच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। सो एज अ डिजाइनर वो जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना इन चीजों को फेस करने का, फर्स्ट टाइम इट वाज ऑल वाओ, सेकंड टाइम लगता है कि इट इज टफ टू हैंडल एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एज अ स्टूडेंट आपको समझ में आता है कि जो भी चीज आप पेपर पे कर रहे हो प्रैक्टिकली बहुत पीछे हो आप उससे। लेट्स होप कि अब जब नेक्स्ट आप मुझसे मिलो तो द थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट।